Hello, welcome to the channel Science at Click. We are starting with the new lesson, that is electricity, a very important lesson for the term 2 examination. Okay, so let's get started with electric current. Electric current is basically of two types. Okay, yes, one is static electricity. Electricity, the word static itself suggests that it is a stationary electricity. Whenever the charges, what is the electricity? Electricity that we get at our home is current electricity. Current means flow and static means stationary. So stationary electricity or the formation of charges which remain stationary is static electricity, that we observe generally in dry weather when there is a friction between certain plastic material with silk or woolen cloth. What we get formation of charges. ये experiment सबने किया हुआ है, that when you rub ruler or pen to your hair and then you can attract bits of paper with it. Okay, so this is static electricity. Now if you do same thing with the balloon, that is rubber, what is taking place? Your hair get attracted towards the balloon because oppositely charged particles or opposite charges are formed over here. Okay, so opposite charges show attraction which result into this. Okay, now if you rub two balloons together, two balloons on your hair and then tie them together, what you will observe that they repel each other, like hair are getting attracted towards balloon. Two balloons with similar charges will repel each other. If you rub one balloon and if this is a wall, you rub the balloon on your head and then you put it close to the wall, it will stick to it because opposite charges are developed. बलून पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है that is opposite to the charge on the wall and hence it gets attracted, so it is sticking to the wall. But जब दो बलून रब करके एक दूसरे के साथ टाई करोगे, then you will observe that they are moving away from each other because similar charges are developed on the balloon which result into repulsion of balloon. Okay, तो ये समझ में आ गया, ये होगी आपकी स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. ये सेम एक्सपेरिमेंट आप अगर प्लास्टिक स्केल के जगह अगर आप मेटल स्केल लेते हो तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सब ने पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों, ये हम लोग देखेंगे कि क्या स्पेशल है मेटल्स में, क्यों वो कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते, दैट विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई मेटल का रॉड लिया, वो रब किया और उससे अट्रैक्ट किया तो नहीं होगी क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर है चार्जेस का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का. तो यहाँ पे ये आपके चार्जेस नहीं रहेंगे, ये इजीली मेटल से फ्लो होके आपके बॉडी में चले जाएंगे. ओके, सो दिस इज अ स्टेशनरी चार्जेस. ये भी फ्लो होते हैं लेकिन टू लिमिटेड एक्सटेंट. ओके, very limited extent, and this charges are generally stationary and that's why we call them static electricity. अभी ये लेसन में हम लोग static electricity डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ what is the difference. okay, अभी current electricity, what is the meaning of current? ये है current electricity जो हमारे घर में आता है, जो current हमारे घर में आता है जिस पे हम लोग सब लाइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव क्या कुछ नहीं चलाते. ओके, एंड वी आर चार्जिंग आवर मोबाइल फोन्स, राइट? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ लेट्स सी, जैसे स्टैटिक का मीनिंग हम लोगों ने देखा स्टेशनरी, वैसे करंट का मीनिंग होता है फ्लो.
देखो वाटर करंट किसको बोलते हैं हम लोग, व्हेन वाटर फ्लोज, व्हेन वाटर फ्लो, उसको वाटर फ्लो को हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। एयर करंट किसको बोलेंगे, ओके, एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, दैट रिजल्ट इनटू एयर फ्लो और एयर करंट। ओके, सो वाटर फ्लो को वाटर करंट बोलेंगे, वाटर फ्लो को वाटर करंट बोलेंगे, अरे वाटर करंट बोलेंगे। एयर को, एयर फ्लो को क्या बोलेंगे, जो ब्रीज फॉर्म होती है किसकी वजह से होती है, कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड ब्लो होती है। ओके, ये एयर करंट की वजह से तो मॉनसून आता है, राइट, वन ऑफ द फैक्टर, पढ़े हो ज्योग्राफी में। ओके, सो एयर करंट, एयर जब फ्लो होती है उसको एयर करंट, मतलब एयर के पार्टिकल्स जब फ्लो हो रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं एयर करंट। जब वाटर के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं उसको बोलते हैं वाटर करंट। तो भैया सीधी सी बात है, जब आपके चार्जेस फ्लो होंगे, जब चार्जेस फ्लो होंगे तो हम उसको बोलेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम उसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये लेसन में जब जब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करूंगी, वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ में आई। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। Okay, so how will you define electricity? It is a rate of flow of charge. What is electricity? It is a rate of flow of charge. तो समझ में आ गया difference between stationary and current? Okay, now क्या बोला मैंने definition? Definition is your electricity is rate of flow of charge. Okay, अभी के लिए rate को बाजू में रख देते हैं। ओके, लेकिन देखो फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, रेट मतलब कितने रेट से, कितने स्पीड से आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं, उससे डिफाइन होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो फ्लो ऑफ चार्जेस, मैडम कहाँ से आए चार्जेस, सिंपल सी बात है कि हर एक सब्सटेंस तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उस पर नहीं है। हर एक सब्सटेंस किससे बना हुआ है, आपका एटम से बना हुआ है, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो। मेटल्स ले लो जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी घर में सब जगह फ्लो हो रही है, कॉपर वायर से। ओके, तो क्या है, कॉपर वायर इज मेड अप ऑफ व्हाट, कॉपर एटम्स। तो एटम में क्या है, एटम में है ना आपके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। ओके, ये बात समझ में आई। तो दो योर सब्सटेंस एज अ होल इज न्यूट्रल बिकॉज एटम इज न्यूट्रल, बट एवरी एटम इज कैरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो कौन फ्लो होंगे, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स अच्छे से बैठे हुए हैं आराम से, वो तो फ्लो नहीं होंगे, दे आर हैवी पार्टिकल्स। ओके, कौन फ्लो होंगे, जो हल्के हैं, जिनका मास हम निग्लिजिबल करके कंसिडर करते हैं और वो काफ़ी न्यूक्लियस से दूर भी है, तो ये ईजिली इमिट होके फ्लो होते हैं। तो ये जब फ्लो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, बताऊंगी। ओके, तो जब ये फ्लो होते हैं तो व्हाट इज फ्लोइंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन आई एम सेइंग फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स फ्लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएंगे, हम लोगों ने आयन फॉर्मेशन में, वैलेंसी में देखा हुआ है, स्टडी किया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं एटम से तो क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है। तो पॉजिटिव चार्ज बन गया और इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और ये होंगे फ्लो, ये क्या होंगे, फ्लो। तो ये बात समझ में आई कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और क्या होता है चार्ज, कहाँ पे होता है। ओके, सो चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। Okay, charge is denoted by Q. And how to calculate charge on a body? Charge on a body is calculated by formula N into E, where N is number of electrons. वो body में कितने electrons है, okay, free electrons है,
उसका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. बस इलेक्ट्रॉन के पास ये चार्ज क्या है? नेगेटिव. प्रोटॉन के पास यही वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में. समझ में आ रही बात? एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम. Charge is always measured whether it's positive or negative. It is always measured in coulombs. Okay? और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ये नंबर याद रखो अच्छे से. Okay? So this is the first formula of the lesson, that how to calculate charge on the body. Either आपको number of electrons देंगे, ये E की वैल्यू तो हमको पता ही है, सो यू कैन कैलकुलेट चार्ज, और दे विल गिव यू चार्ज एंड विल आस्क यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल कैरी दिस मच चार्ज. ओके, सो वी कैन डू दिस वेरी वेल. वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज. अभी देखते हैं करंट क्या है. नहीं, उसके पहले, करंट के पहले देखेंगे एक्चुअल करंट पे अभी आने के हम लोग. लेट्स सी why your metals are good conductors. मैम सबके पास एटम्स है. मैम आपने तो बोला हर एक एटम के पास चार्जेस है क्योंकि उनके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, तो सभी के सभी एलिमेंट तो एटम से बने हुए हैं. तो why all are not good conductors of electricity? Some of them are why bad conductors और some of them are why insulators. बताती हूँ. क्योंकि आपके मेटल का जो स्ट्रक्चर है, मेटल का जो एटम है, वो काफ़ी बड़ा एटम होता है. ओके, आई ड्रॉ इट ओवर हियर. आपके मेटल का एटम ये काफ़ी बड़ा एटम होता है. ओके, सो समझ लो एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स. ओके, तो एक एग्जाम्पल समझ लो. एंड हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दोज विल बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत है because that is tightly bound to the nucleus. Nucleus is positively charged, electron is your negatively charged, so there is a great force of attraction और आजू बाजू में ही है. So holding काफ़ी अच्छा है. Okay, nowadays when you are at home, mama has all the control on your school classes. YouTube पे क्या देख रहा है, then उसके बाद friends के साथ क्या बात कर रही है, सब पता है मम्मा को. ओके, बिकॉज यू आर ऑल द टाइम, यू आर ऑल्सो एट होम, शी इज ऑल्सो एट होम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, isn't it? But it was not so few years back, 2 years back, it was not the case. She was not knowing what you are doing at the school, isn't it? और या फिर एक और कंसिडर कर लो कि एक बंदा है जो हॉस्टल में रहता है, सो मॉम को वही पता है जो वो फ़ोन पे बता रहा है. शी इज़ नॉट हैविंग ऑल द कंट्रोल, क्या खा रहा है, कब खा रहा है, कब पढ़ाई कर रहा है, शी हैज़ नो कंट्रोल. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बंदा है, ये वो हॉस्टल वाला बंदा है. और ये जो हो ना, ये आप हो. ओके, जो घर में बैठ के जब यूट्यूब देख रहे हो, तो वो भी मम्मी को पता है कि क्या देख रहे हो, राइट? वेदर साइंस एट क्लिक देख रहे हो, नहीं देख रहे हो. ओके, शी इज़ मॉनिटरिंग एवरीथिंग. सो this is as good as free. Okay, it is as good as free. Mama cannot dictate what to do, what not to do. Okay, so this is as good as free in case of metals because this is quite away. जो नॉन मेटल्स के एटम होते हैं आपके, वो कॉम्पैक्ट होते हैं, उनका साइज छोटा होता है. तो सब जब साइज छोटा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी जो है उस पर काफ़ी होल्ड है न्यूक्लियस का. ओके, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर होल्ड है न्यूक्लियस का, तो वो फ्री नहीं है इधर उधर जंप करने के लिए. आई बात समझ में? समझ रही है बात? तो दे आर नॉट फ्री टू जंप टू द नेक्स्ट एटम. जब एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है. इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो रही है. समझ लो बात दिमाग
में एकदम फिट बिठा लो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर, इट इज व्हाट करंट इज फ्लोइंग. ओके, और ये किसके लिए पॉसिबल है? ये सिर्फ आपके मेटल्स के लिए पॉसिबल है, क्योंकि मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एज गुड एज फ्री है और उसके जो आयंस है ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है. ओके, दे आर नॉट डिटैच्ड, दे आर देयर विथ देम, बट दे आर एज गुड एज फ्री. सो इसको अगर आप धक्का दे दो थोड़ा सा, तो दे विल स्टार्ट मूविंग, जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर. ओके, तो ये धक्का कैसे देते हैं वो भी बताऊंगी. और ये है आपके नॉन मेटल्स जो एक दूसरे के साथ ऑलरेडी शेयरिंग से बॉन्ड लिंक कर चुके हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और होते भी तो इतने इजीली यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है. ये बात समझ में आई? वाई कंडक्टर्स, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. ओके, अभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Your electrons are moving. This is a conductor. Here you are attaching a battery. इसको छोटा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं. So this is your negative end, this is your positive end. Okay? So negative end से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ पे? टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड. कभी भी मूव करेंगे. अगर एक पीस पड़ा हुआ है, अगर मैं बोलती हूँ दिस इज अ मेटल पीस, मेटल रॉड, मेटल वायर, इसको हाथ लगाऊंगे मुझको शॉक लगेगा? मुझे शॉक लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों नहीं हो रहे इसमें? दो दे आर फ्री, कभी भी मूव नहीं होते. कब होते? बोलेंगे, बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, अभी नहीं. लेकिन ये बात समझ में आ गई? So what is electric current? Flow of electric current is nothing but flow of electrons. Okay? Flow of electrons. When I am saying that electric current is flowing through this wire, that means electrons are मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड. मैम फिर हम तो सर्किट में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देखते हैं. यस, बिकॉज जब पता चला, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, एट दैट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन वेरी डिटेल वाज नॉट नोन. तब नहीं पता था कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, प्रोटॉन्स नहीं करेंगे. तो तब इजी था कि वाटर फ्लो होता है फ्रॉम हाई दिस थिंग, हायर हाइट टू लोअर हाइट. आपका करंट भी फ्लो होगा फ्रॉम हायर डेंसिटी, हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर. आपका एयर भी वैसे ही फ्लो होगी, आपका वाटर भी फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट फ्लो होगा. वैसे ही तब ये समझा गया कि करंट फ्लोज from positive end, because positive is the presence of something and negative is the absence of that positivity, is a negative, right? So तब ऐसा माना गया कि कहीं कुछ तो है जो पॉजिटिव एंड से जाएगा और कहा नेगेटिव जहाँ पे कुछ नहीं है. ओके, सो हायर टू लोअर ऐसे जाएगा. इसीलिए कन्वेंशनली वी राइट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. समझ में आ गई बात कैसे लिखना है? सो एरो दिखाते वक्त ऐसे दिखाओगे, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो रहे हैं दिस डायरेक्शन, आप लोग करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन शो करोगे. आगे बात समझ में? वाई दिस इज सो, क्यों ऐसे लिखते करके. अभी देखते करंट का डेफिनेशन. करंट का डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हमने लिखा चार्ज एंड रेट को लिखा टाइम. वी नो दैट हम लोग वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर वेलोसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय. जब कभी भी हम रेट बोलते हैं, रेट,
तो वो होता है टाइम के हिसाब से. Okay, so that's why charges flowing in per time is your what? Current. मैंने बताया था अभी कि charges we denote by Q, time को T से, so and current को denote करते हैं I से. Okay, so capital I is equal to capital Q divided by T. ये हो गया आपका current. ठीक है, I is equal to Q upon T. अभी हमको पता है कि इसका क्या है यूनिट? कूलम. इसका यूनिट क्या है? कूलम. सिर्फ C लिखती हूँ. और इसका क्या है? टाइम. तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल A. ओके, सो how you will define electric current now? Electric current is the amount of charge flowing through a particular area. यहाँ का अगर करंट निकालना है तो amount of charge, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. ओके, सो amount of charge flowing through a particular area in unit time. ओके, अगर t को 1 सेकेंड कर दो आप, t I क्या हो गया आपका? Q अपॉन T. अगर T को 1 कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? I इज इक्वल टू Q हो जाएगा. तो हाउ विल यू डिफाइन दैट? इट इज द करंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज when it is passing in unit time. When it is passing through a particular area in unit time. लर्न करने की जरूरत नहीं है. ओके, इतना सिंपल है. ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q इज इक्वल टू N इंटू E. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ये हो गया टोटल चार्ज. और ये टोटल चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है विल गिव यू योर करंट. ओके, वी मेजर यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. गिवन in honor that this name is given to in honor of scientist Ampere. उन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, सो उनको ऑनर करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, इनका नाम यूज़ करते हैं. ये एक ही यूनिट नहीं है, कुछ स्मॉलर यूनिट भी है, जैसे कि मिली एम्पियर. जैसे ग्राम का मिलीग्राम करते हो ना, 10⁻³ राइट. एंड microampere 10⁻⁻6 amperes is 1 microampere. न्यूमेरिकल्स में ये भी यूनिट आ सकते हैं. ओके, सो दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर ओनली. दिस इज क्लियर. नाउ हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T. सो एम्पियर इज इक्वल टू C अपॉन T, कूलम पर टाइम. सो जब एक कूलम का करंट आप पास करोगे आपके वायर थ्रू फॉर 1 सेकेंड. ओके, सो when a coulomb of charges, when 1 coulomb charges are flowing through the wire for 1 second, the current that you get is what? 1 ampere. Okay, and 1 milliampere is equal to 10⁻³ amperes and 1 microampere is equal to 10⁻⁻6 ampere. इतना समझ में आ गया ये करंट, इसके फॉर्मूलाज. अभी ये देखो, ये है आपके इंस्ट्रूमेंट्स. ये है आपका एमीटर. ओके, जो करंट मेजर करता है. एमीटर हमेशा आप अपने सर्किट में, जब हम लोग सर्किट देखेंगे तब फिर से बताऊंगी, लेकिन अगर ये आपका ये आपका सर्किट है, ये सेल है प्लस माइनस. ओके, और यहाँ से करंट फ्लो, ये आपका बल्ब है, यहाँ से करंट फ्लो करना है आपको. तो एमीटर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन सीरीज में लगेगा. एमीटर कहाँ पे लगेगा? इसके कॉम्बिनेशन में लगेगा. ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव है, तो दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड को नेगेटिव एमीटर का. ओके, जब वोल्ट मीटर के बारे में बात करेंगे तब बताऊंगी कि वोल्ट मीटर कैसे ज्वाइन करना है. ये समझ में आ गया? एमीटर आप सीरीज में अटैच्ड करोगे आपके सेल के साथ, और
आपके बल्ब के साथ, और ये मेजर करता है जितना करंट फ्लो हो रहा है आपके बल्ब के थ्रू उतना ही करंट फ्लो होगा आपके एमीटर के थ्रू, और यहाँ पे आपको मिलेगी रीडिंग डायरेक्टली। ओके, एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर करके। तो गैल्वेनोमीटर also measure current but it's a very sensitive device, ओके और ये सिर्फ करंट नहीं मेजर करता, ये बताएगा कि आपके करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। अगर ये यहाँ पे 10 का रीडिंग दिखा रहा है उसका मतलब आपका करंट फ्लो रहा है इन दिस डायरेक्शन। इफ इट्स शोइंग इन दिस डायरेक्शन दैट मीन्स योर करंट इज फ्लोइंग इन this direction. Okay, so very sensitive device. Okay, but yes, and along with the magnitude of your current it also shows the direction of a flow of current, and this shows only magnitude of the current. ये हो गया इन दोनों में का डिफरेंस, लेकिन दोनों क्या लगाएंगे, करंट मेजर करना है तो हमेशा हम हमारे सर्किट में सीरीज में लगाएंगे एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर को। जो जब करंट मेजर करना है हम लोग ये करंट ही मेजर करेंगे। अभी मल्टीमीटर्स आते हैं जो सब मेजर करते हैं, लेकिन ठीक है हमारे सिलेबस में ये है तो हम ये पढ़ेंगे कि दिस इज एमीटर एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये बात समझ में आई? समझ में आ गया कि चार्जेस क्या होते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, कंडक्टर्स में ही क्यों फ्लो होते हैं, डेफिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, apparatus। अभी देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने दो ही फॉर्मूले देखे हैं अभी ये वाले पार्ट में। एक तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई है एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नाउ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन, गिवन लिखेंगे सबसे पहले I इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 15 मिनट्स। सो T इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को सेकेंड्स में। सो 15 इंटू 60 सेकेंड्स। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज। राइट हैंड साइड में आएगा जो पूछा गया है। फिर यहाँ पे लिखोगे, हम लिखोगे फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q इज इक्वल टू I इंटू T। इसको लेके जाएंगे इधर तो Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा। तो क्या है I की वैल्यू आपकी 1 एंड T की वैल्यू 15 इंटू 60। ओके, Q इज इक्वल टू वॉट, 900 कूलम्स। आगे बात समझ में? इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। ओके, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। न्यूमेरिकल हमेशा टाइम सेव करते हैं, लेकिन जल्दी में कुछ भी नहीं लिख देना है। ओके, अच्छे से लिखो। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अभी I की वैल्यू गिवन लिखना है, इसके ऊपर ऐसे गिवन करके लिखना है जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। ओके, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ सर्किट फॉर 10 मिनट। T इज इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड्स। एम आई राइट? फाइंड द अमाउंट ऑफ Q। अगेन Q इज इक्वल टू अच्छे से लिखोगे जैसे मैंने पहले बार लिख के बताया था। ओके, I इंटू टी, पहले क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ऐसे अच्छे से लिखना है। फिर देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 10 इंटू 60, जो कोई भी आपका आंसर आता है। ओके, क्या आएगा, 0.5 इंटू 10 इज 5 इंटू 60 300। और ऐसे बॉक्स करना है फाइनल आंसर को। ओके, अभी थर्ड, इफ अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, चार्ज Q की वैल्यू दी हुई है 20 कूलम इज पासिंग थ्रू द सर्किट फॉर 50 सेकेंड्स। देखो अभी कन्वर्ट भी नहीं करना है, उन्होंने ही सेकेंड में दिया हुआ है। ओके,
और क्या निकालना है, करंट। कितना सिंपल है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, 20, ओके सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, 0.4 एम्पियर। कितना इजी। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमको पता है Q इज इक्वल टू वॉट, N इंटू E। यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे बता देती हूँ, गिवन में Q इज इक्वल टू 1 कूलम लिखो, 1 कूलम के चार्ज में पूछा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और N में N कैलकुलेट करना है। सो 1 N वैसे कि वैसे, और ये क्या आएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, सो N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा, ये पहले डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये क्या आएगा, प्लस 19 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आप कैलकुलेट करो खुद से, कैलकुलेटर से नहीं, क्योंकि हमको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 1 कूलम कैरी करेंगे चार्ज, 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम चार्ज होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। तो ऐसे कितने कूलम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिला के 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल के कितना चार्ज बनेगा, आपका 1 कूलम का चार्ज बनेगा। समझ में आगे बात। अभी नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू द फिलामेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी कहानी में ट्विस्ट, 2 टाइप के एग्जाम्पल्स बगे, न्यूमेरिकल्स देखे हम लोगों ने। ओके, अभी दोनों मिला के इसका आंसर करना है। तो लिखो गिवन, लिखो मेरे साथ सॉल्व करो, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके, पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे, ओके, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स। तो T इज क्या, T इज योर 16 सेकेंड। तो लिखते हैं फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, but we know that Q is equal to what, N into E, therefore I is equal to, substitute करो Q को N E से, N into E डिवाइडेड बाई T। ठीक है ना। अभी निकालना क्या है, निकालना आपको N है, ठीक है। तो फॉर्मूला को रीअरेंज करो, I इंटू T, इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या, N तो निकालना है तो E को लेके जाते हैं, डिवाइडेड बाय E विल गिव यू N। ओके, तो अभी लिखो, अभी I की वैल्यू का क्या आएगी आपकी 1 एम्पियर, T की आएगी 16, सो 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो दिस 10, और ये ऊपर लेके गए तो 10 इंटू 10 टू द पावर -19 का +19 हो जाएगा। तो टोटल क्या हुआ, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। 1 एम्पियर करंट मिलने के लिए 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फॉर 16 सेकेंड्स, तब जाके आपको कितना करंट मिलेगा, 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। बहुत इजी है ये लेसन। ओके, अभी अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, ओके,
So given is I is equal to 150 milliampere, that is equal to 150 into 10 to the power minus 3 ampere. ओके, ये मैंने पहले ही बताया है वीडियो के स्टार्ट में. ओके, थ्रू अ सर्किट फॉर 2 minutes, t is equal to 2 into 60 seconds. Find the amount of charge. So I is equal to Q upon T. So Q is equal to I into T. करो अभी सिंपल मल्टीप्लीकेशन. I क्या है 150 इंटू 10 to the power minus 3 और T है 2 इंटू 60 मतलब 120 सेकेंड्स. सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी. तो Q विल बी इन कूलम्स. ठीक है. A total of 6 into 10 to the power 46 electrons. N की वैल्यू दी हुई है. किसकी वैल्यू है ये? N की वैल्यू. Flow through a current carrying conductor. These many electrons are flowing through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current. T is equal to 20 seconds. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? I फाइंड आउट करना है. ठीक है, कैसे करोगे? I की वैल्यू, I का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. लेकिन Q दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. कहीं पे भी कूलम नाम की चीज़ दिख रही है? चार्ज नाम का वर्ड दिख रहा है? नहीं, Q नहीं दिया हुआ. तो Q फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो Q कैसे कैलकुलेट करोगे? N इंटू ई से. ओके, सो N की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10 टू द पावर 46. E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ओके, तो ये हो गया आपका Q. इसी को डिवाइड कर दो T से. क्या है आपका T? 20 सेकेंड्स. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा I. ओके, करो कैलकुलेशन करो और मुझे बताना कि क्या आए इसके रिजल्ट्स. ठीक है, मैसेज करके कमेंट में डाल के. ठीक है. सो 6 इंटू 10 टू द पावर 46 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.6 तो 46 डिवाइडेड बाय 19 हो जाएगा यहाँ पे. ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड बाय 20 करो. तो आगे आपका आंसर किसका? करंट का. यूनिट क्या आएगा? एम्पियर. हमेशा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते वक्त गिवन से करना है. सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है. हमेशा फाइनल आंसर को बॉक्स लिखना है, करना है और सामने यूनिट आएगा ही आएगा, नहीं तो गया हाफ मार्क. ओके, ये पॉकेट वाले मार्क्स है, इनको नहीं गवाना. ओके, ये बात आगे समझ में. सो विल स्टॉप ओवर हियर. दिस इज ऑल रिगार्डिंग ओनली इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, टिल देन कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग साइंस एट क्लिक. थैंक यू.